ٹیلی نیوز۔ بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں رانچی میں کھڑا ہوں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں تقریباً 3.5 سال مولانا ابوالکلام آزاد نے نظر بند رہ کر کے گزارا ہے۔ ان آب و ہواؤں میں، ان فضاؤں میں مولانا آزاد کی خوشبو ہے، یہاں ان کے احساس ہیں۔ میں اس لیے یہاں کھڑا ہو کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے جب دیش کی پارلیمنٹ میں اپنی تقریر شروع کی تھی تو اس سمے بھی مولانا آزاد سے شروع کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ 1947 میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر کے جب مولانا آزاد نے تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، یہ ہے تمہارا ملک، یہاں تمہارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، تو لوگوں نے اپنے سروں کی گٹھڑیاں اتار کے رکھ دی تھی۔ اور آج اسی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس سوئے ہوئے مولانا آزاد کو پھر سے صدا دینی پڑے گی کہ یہ میری قبر ہے، یہ سرکار کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ سرکار جو آپ کی عبادت گاہوں کو، آپ کے قبرستانوں کو اپنی جاگیر بنا لینا چاہتی ہے، دراصل مخالفت اس سوچ کے خلاف ہے۔ وہ جو امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں اس میں کچھ امینڈمنٹ اتنے خطرناک ہیں کہ اگر وہ زمین پر اتر گئے اور لاگو ہو گئے تو ہر شہر میں، ہر جگہ یہ سرکار ایک الگ طریقے کی فرقہ پرستی پھیلانا چاہتی ہے۔ ہم لوگ اس کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی لڑ رہے تھے، سپریم کورٹ میں بھی لڑ رہے ہیں۔ ہمارے کئی ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پہ خود سے پٹیشن فائل کیا ہے۔ میں بھی پارلیمنٹ میں لڑنے کے بعد سپریم کورٹ میں بھی اس مدعے پہ لڑ رہا ہوں، اور ہمیں سپریم کورٹ سے بہت امیدیں ہیں کہ وہ آئین کا پاس ضرور رکھیں گے، لیکن ہر لڑائی صرف پارلیمنٹ اور نیایالوں تک ہی نہیں لڑی جاتی۔ اور میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی چھاتی ٹھوک کے یہ بات کہی تھی کہ آج جو آپ کرشی قانون، آج جو آپ یہ وقف کا قانون لے کر کے آئے ہیں، اسی کھسک اور اسی ضد کے ساتھ آپ دیش کی پارلیمنٹ میں سی اے کا قانون بھی لائے تھے، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم دوسرے ملکوں میں بسنے والے ہندو بھائیوں کو ہندوستان میں لا کر کے ان کو ناگرکتا دیں گے، ان کو سٹیزن شپ دیں گے۔ لیکن میں نے ان کی پول کھولتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ پچھلے 10 سال میں 2000 ہندو بھائی بھی آپ سے ناگرکتا مانگنے کے لیے نہیں آئے۔ اس کے الٹ 15 لاکھ ہندوستانیوں نے پچھلے 10 سال میں ہندوستان کی سٹیزن شپ چھوڑ دی، دوسرے ملکوں میں جا کر کے بس گئے۔ یہ انجام ہوا ہے اس قانون کا۔ ایسے ہی کرشی قانون لے کر کے آئے تھے، اس کے فائدے گنوائے تھے پورے ملک کو انہوں نے، لیکن آپ کو یاد ہوگا، میں سلام کروں گا اپنے دیش کے کسانوں کو کہ انہوں نے دلی کی سرحد پر آ کر کے اپنے تمبو گاڑ دیے، 700 کسان شہید ہو گئے، اور ایک دن مجبور ہو کر کے دیش کے پردھان منتری کو اپنے روکھے گلے کے ساتھ دیش سے کہنا پڑا کہ ہم کرشی قانون واپس لے رہے ہیں۔ یہ انجام ہوا اس قانون کا۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ دیش کی پارلیمنٹ میں قانون انہوں نے پاس کر دیا تو اب آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، نہیں۔ دیش کا آئین آپ کو طاقت دیتا ہے، آپ کو اجازت دیتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ اگر کوئی قانون عوام کے خلاف ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ پورے ملک کا مسلمان احتجاج کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس لڑائی کو چھوڑیں گے نہیں، اس لڑائی کو لڑتے رہیں گے، کیونکہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ یہ ظلم سہنا نہیں ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، کیونکہ اسی زمین میں جو خودداری بوئی ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ میں آج راستے میں آ رہا تھا تو میں دلی کے جامع مسجد میں 1947 میں ان کا دیا گیا بھاشن، ان کی تقریر پڑھ رہا تھا، تو مجھے لگا کہ جب میں وہاں کھڑا ہوں گا تو میں دونوں کو کیسے ایک دوسرے
कनेक्ट करूं। 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मौलाना आजाद की तकरीर, और 3.5 साल यहां नजरबंद रहते हुए उन्होंने जो सोचा, जो लिखा, शायद दोनों बहुत एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और आज तो बारिश भी हुई है। उन्होंने उस वक्त कहा था तकरीर करते हुए कि अजीजों, अपने दिलों को मजबूत बनाओ, अपने दिलों को मजबूत बनाओ और अपने दिमागों में सोचने की आदत डालो, फिर देखो ये फैसले तुम्हारे लिए कितने फायदेमंद होंगे। ये देखो, मस्जिद के मीनारे तुमसे उचक उचक कर सवाल कर रहे हैं कि तुमने अपने तारीख के सफात को कहां गुम कर दिया है। अभी कल की ही बात है कि यही जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था, और आज तुम हो कि यहां रहते हुए खौफ महसूस करते हो। अजीजों, अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो। तुम्हारा खौफ बेजा है। मुसलमान और बुज़दिली एक जगह जमा नहीं हो सकता। सच्चे मुसलमान को कोई ताकत हिला नहीं सकती है, न कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब हो जाने से डरो मत। अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो। ये ना कहो कि इसके लिए तैयार नहीं थे, बल्कि तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए हैं, लेकिन सूरज तो चमक रहा है। उससे किरण मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजालों की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम हाकिमाना इक्तिदार के मदरसे से वफादारी का सर्टिफिकेट हासिल करो। मैं कहता हूं कि जो उजले नक्शो निगार तुम्हें इस हिंदुस्तान में माजी की यादगार के तौर पर नजर आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारा ही काफिला लाया था। उन्हें भुलाओ नहीं, उन्हें छोड़ो नहीं, उनके वारिस बनकर रहो। समझ लो, तुम भागने के लिए तैयार नहीं तो फिर कोई ताकत तुम्हें नहीं भगा सकती है। आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है। आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है। हम इसके लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद जलजला थे। आज अंधेरे से कांपते हो, क्या याद नहीं रहा कि तुम्हारा वजूद खुद में एक उजाला था। ये बादलों ने मैला पानी क्या बरसाया कि तुमने भीग जाने के डर से पायजामे ऊपर चढ़ा दिए। वो तुम्हारे ही इस्लाफ थे जो समुद्रों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला। आंधियां आई तो उनसे कह दिया कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। ये ईमान से भटकने की बात है कि शहंशाहों के गिरेबान से खेलने वाले आज खुद अपने गिरेबान से खेलने लगे हैं। अजीजों, मेरे पास कोई नया नुस्खा नहीं है, वही 1400 बरस पुराना नुस्खा है। वो नुस्खा जिसको कायनात का मोहसिन लेके आया था। ये वो तकरीर है जो 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर मौलाना आजाद ने दी थी। मैं रांची में खड़ा था तो मुझे लगा कि इसे दोहराना जरूरी है। आप डरिए मत। एक लड़ाई पार्लियामेंट में, एक लड़ाई अदालत में, तो एक लड़ाई जमीन पर। आपकी इबादतगाहों के खिलाफ, आपकी दर्सगाहों के खिलाफ, आपके कब्रिस्तानों के खिलाफ कोई हाथ बढ़ता है तो आगे बढ़कर के उस पंजे से पंजा लड़ाओ और कहो कि हम इसके मुहाफिज हैं। हम अपने पुरखों की, अपने अजदाद की दान की हुई जमीनें, वक्फ की हुई जमीनें लूटने नहीं देंगे। हुकूमत कह रही है कि वो पसमानदा के हुकूक के लिए इस वक्त में अलग से प्राविधान करेगी। मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि बुनकरों के उद्योग को बर्बाद करने वाली ये सरकार, चाहे वो मालेगांव हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे इचलकरंजी हो, चाहे बनारस हो, चाहे मऊ हो, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे रांची हो, पूरे मुल्क में जो बुनकरों के हाथ में कारोबार था कि अपने हाथों के हुनर से वो लोगों के जिस्मों के लिए लिबास बनाते थे, उस पूरे रोजगार को बर्बाद कर दिया गया। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बुनकर जो है
पसमानदा समाज से आते हैं, अगर आप पसमानदा समाज की भलाई चाहते हैं तो जो इनकी सब्सिडी थी उसको बहाल करिए। आप कहते हैं कि आप मुस्लिम बहनों के हुकूक के लिए कानून लेकर के आए हैं और वक्फ में आप मुस्लिम बहनों को हिस्सा देंगे। नरेंद्र मोदी जी, हमें गुजरात की बेटी बिल्किस याद है, जब आप दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के 15 अगस्त को इस देश में महिला सशक्तिकरण पे भाषण दे रहे थे, तो उसके महज 2.5 घंटे के बाद आपके गृह राज्य गुजरात में न सिर्फ बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे, बल्कि उनको आपकी पार्टी के नेता मालाएं पहना कर उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और आप बात करते हैं मुस्लिम बहनों के हुकूक की। ये कहानी किसी और को सुनाइएगा नरेंद्र मोदी साहब। हम समझते हैं इस खेल को, हमारी नई नस्लें समझती हैं इस खेल को। ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। रांची वालों, एक बात याद रखना कि जब वक्त पे कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो जीत उसमें यकीनन हमारी होती है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक बिकता है, शाम होते होते वही 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। खामोश मत होइएगा, डरिएगा मत, क्योंकि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाइए, आवाजें बुलंद बोलिए। इस देश के सिख भाई, इस देश के आदिवासी भाई, इस देश के दलित भाई, इस देश के पिछड़े और इस देश के अमन पसंद फॉरवर्ड क्लास के लोग भी आपके साथ हैं। वो इस लड़ाई में आपकी बाट जोड़ रहे हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और मैं जिस पार्टी से आता हूं, उसका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन होने की हैसियत से भी कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जब भी सरकार बदलेगी, मैं यकीन दिलाता हूं आप सारे लोगों को कि पहली फुर्सत में जब भी हुकूमत बदलेगी, ये जो भी आईन के खिलाफ जाकर के अमेंडमेंट लाए हैं, इसको एक झटके में फिर उसी संसद के जरिए बदलने का काम इंडिया गठबंधन करेगा, कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। इसलिए बिल्कुल मायूस मत होइए, मायूसी कुफ्र है। हम लड़ेंगे, अपनी जमीनों की हिफाजत करेंगे, अपनी दरसगाहों की हिफाजत करेंगे, अपनी खानकाहों की हिफाजत करेंगे, अपने कब्रिस्तानों की हिफाजत करेंगे। कोई हुकूमत, कोई सरकार हमसे छीन नहीं सकती। और अभी हफीजुल भाई ने तो भरोसा भी दिलाया, यहां के चीफ मिनिस्टर साहब भी, हेमंत सोरेन साहब भी इस चीज को लेकर के संजीदा हैं। तो कम से कम कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो, ऐसे कई सूबे हैं जहां भाजपा की नफरत वाली सोच के बरक्स एक नई सेकुलर सोच खड़ी है, जो उनके किसी भी कानून के खिलाफ, जो कानून अवाम के हक में नहीं है, उसको अपने यहां इंप्लीमेंट नहीं होने देगी। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपने बहुत लंबी तकरीरें सुनी है, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। बस आपका इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना है कि आप इस बारिश में भी हजारों की तादाद में यहां इकट्ठे हुए। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बारिश अगर आपको रोक नहीं पा रहा है, तो फिर ये आपका जज्बा ही हमारी ताकत है। ये जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, ये आपके हौसले की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी उम्र जी ली है, लेकिन ये अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, अपने नए नस्ल के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। यहां मौजूद एक एक शख्स हमारे इन बुजुर्गों के हौसले के लिए, इनके लिए दुआ के लिए एक एक हाथ उठा करके, ताली बजा करके इनको एहसास दिलाए कि कौम की नई नस्ल आपके साथ खड़ी है। आप पूरे मुल्क में इस आंदोलन की अलख जगा के रखिए, इंकलाब बर्पा करके रखिए। इंशाअल्लाह नई नस्ल आपको जब भी जरूरत होगी, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। हम सारे लोग किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे।
किसानों ने 700 जानें कुर्बान की, लेकिन हुकूमत को झुकने पे मजबूर कर दिया। तो हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आंखों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। अगर आपके कलेजे की ठंडक के लिए आपको कुर्बानियों की दरकार है, तो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था और यहां भी कह रहा हूं कि उनसे 2 कदम आगे ये इमरान खड़ा मिलेगा। अगर आपको कुर्बानियों की दरकार है तो आप लीजिए। और हमने अभी दिखाया, समाज ने दिखाया कि जब पड़ोस के मुल्क ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई, तो बंगाल के झंटू अली शेख ने पहली शहादत दी पहलगाम अटैक के बाद। जब पड़ोसी मुल्क ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान में नफरतें फैला करके वो हमारी एकजुटता को तोड़ने का काम करेगा, तो कर्नल सोफिया कुरैशी आगे निकल के आई और उसने पूरी दुनिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। जब पड़ोसी ये सोच रहा था कि हम भारत को कमजोर करने के लिए कौमों में नफरतें फैला देंगे, तो बिहार के छपरा के बीएसएफ के इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि मैं इस मुल्क के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूं, और उन्होंने इस मुल्क की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और जवाब दे दिया उनको जिन्होंने कहा था कि पंचर बनाते हैं लोग। याद है वो जुमला? कहा था ना कि पंचर बनाते हैं लोग। लेकिन इस कौम ने बता दिया, इस समाज ने बता दिया कि नहीं साहब, हम सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं। मैंने तो एक शेर कहा उस दौरान की, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वो चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो या वीर अब्दुल हमीद हो, जब भी आपको जरूरत पड़ी है हम 2 कदम आगे खड़े मिले हैं, तो हम यहां से खड़े होकर इस सरकार से ये कहना भी चाहते हैं कि इतना जुल्म मत करिए। ये बड़े भोले भाले लोग हैं, खुदा ने इनके हाथों में हुनर दिया है, अपने हाथों के हुनर की बुनियाद पर अपने लिए 2 रोजी और रोटी का जुगाड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं। इनको कम से कम सुकून से मस्जिदों में इबादत करने दीजिए, खानकाहों में बैठने दीजिए, दरसगाहों में पढ़ने दीजिए और सुकून से कब्रों में सोने दीजिए। हमारी कब्रों पे बुलडोजर मत चलाइए। हम आपसे ये मुतालबा करते हैं और हमें डराइए मत। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है, क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। हमने समझम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। हुकूमतों को ये बात समझ लेनी चाहिए और वो समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद जो मुल्क में कुछ बहुत सरप्राइजिंग हुआ है, कहीं न कहीं ये इस बात का सबूत है कि वो समझ रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जहन इससे हट जाए। लेकिन मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सलाम करूंगा कि उन्होंने कहा है कि नहीं, हम जहन नहीं हटने देंगे, हम लगातार लोगों को बेदार करते रहेंगे और बेदार कर रहे हैं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे आपकी दुआओं ने पार्लियामेंट में पहुंचाया। मैं आप सब
अपने बुजुर्गों को भरोसा दिला रहा हूं कि जहां भी जब भी आप सबको जरूरत लगे, यहां हमारे श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रुल्ला साहब बैठे हैं, मोहिबुल्लाह नदवी साहब बैठे हैं, जियाउर रहमान बख्त साहब बैठे हैं, हम सब आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको जब भी जरूरत हो आप आवाज लगाइए। खुदा ने हमें जो भी ताकत दी है उस तमाम ताकत के साथ इस लड़ाई में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये नहीं देखेंगे कि क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा, जो होगा होगा। ये लड़ाई बहुत जरूरी है और ये लड़ाई बहुत अहम है। हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। हम इस लड़ाई को जीतेंगे क्योंकि हम हक पर हैं, हम सच्चाई पर हैं। और आप भरोसा करिए कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। बीच में आपको याद होगा कि जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आजकल भाजपा के इशारे पे कुछ भी करने को तैयार है, उनके सहयोगी बन के घूम रहे हैं, वो मीडिया में बाइट दे रहे थे कि नहीं नहीं वक्फ के बिल से कोई नुकसान नहीं होगा, हम मुसलमानों को भरोसा दिला रहे। कौन दिला रहा था? चिराग पासवान दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? जयंत चौधरी दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? नीतीश कुमार दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? अजीत पवार दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? चंद्रबाबू नायडू जी दिला रहे थे। तो मैं तो उन सब से कहना चाहता हूं कि कलम से और न सियाही से बात करना है, कलम से और न सियाही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिल्ले इलाही से बात करना है। हम हुकूमत से सीधे कह रहे हैं कि आप आईन को कुचलिए मत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ है जो आईन है, ये जो संविधान है, उसका आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 26 हो, आर्टिकल 30 हो, वो इस मुल्क के हर शहरी को, हर नागरिक को ये इजाजत देता है कि वो जैसे चाहें वैसे पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपने इबादत गाहें बना सकते हैं, अपने गुरुद्वारे बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। आप उस आईन को पामाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की बड़ी एक ऐसी बात आपको बताता हूं कि आपको लगेगा कि हां ये भी एक पहलू है। वो जब भी जिस चीज को ज्यादा रखने की कोशिश करें, ज्यादा उसके फेवर में दिखने की कोशिश करें, समझ लीजिए खतरा ज्यादा है। 2014 में याद है जब वो देश के प्रधानमंत्री बनकर पहली बार देश की पार्लियामेंट में आए थे, तो उन्होंने देश की पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे माथा टेका था। याद है आपको वो तस्वीर? संसद में घुसने से पहले संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। और अंजाम फिर क्या हुआ कि 10 साल बीतते बीतते उन्होंने पुरानी संसद ही बदल दी, नई संसद बना दी। इस बार उन्होंने क्या किया है? इस बार उन्होंने संविधान को माथा टेका है। इसलिए खतरा बहुत बढ़ गया है। ये जो एक्ट ला रहे हैं दरअसल ये संविधान को बदलने की साजिशें हैं। और उनके तमाम नेता हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे अरुण गोविल हो, उन्होंने चुनावी नारों में कहा है कि हम संविधान बदलेंगे, हमें 400 सीटें दीजिए। वो तो भला हो इस देश के अमन पसंद लोगों का कि उन्होंने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे लाके अटका दिया। उनको हुकूमत चलाने के लिए 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ी, एक नीतीश बाबू की, एक चंद्र बाबू की। एक भी बैसाखी हटकी, सरकार की सांस अटकी। इसलिए जब हुकूमत ये दिखा रही है कि वो बहुत ताकतवर है, वो जो चाहे वो कर सकती है, तो आप ये समझ लीजिए कि हाकिम डरा हुआ है। डरा हुआ इंसान अवाम को ज्यादा डराने की कोशिश करता है। इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है।
हुकूमत की आंख से आंख मिला के कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है। इसलिए अपना किरदार दुरुस्त करो, दुआओं की सदाएं बुलंद करो, हक पर रहो। जो हक पे होगा उस हक के रास्ते में बड़ी ताकत है। जाते जाते एक शेर सुना के जा रहा हूं, आप कनेक्ट कर लेना मैं कहां से कह रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, कि कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। रांची वालों, कान और दिमाग और दिल तीनों खोल के सुनिएगा और पहुंचाइएगा मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं, कि कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। मैं अभी यहीं बैठा था तो बड़ा जिक्र हुआ, हमारे चिश्ती साहब बोल रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया, बैठे बैठे ये मिसरे हुए कि कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं, ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं, ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, तैयार रहना, जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, ये मिसाइल नहीं है, ये तो अबाबीलें हैं।